And Dr. Muktesh will wait another 2 minutes since the attendees are joining. Okay. Hello parents, I hope you had a good weekend. Appreciation is probably one of the crucial life skills that we need to learn and teach our kids because appreciation yields happiness. It not only enhances our relationship with others but also with ourselves. Parents are the first influencers in shaping kids' lives, and how we can teach them to appreciate others makes a huge difference in them. Appreciating another human being with their unique differences. The motto being, it's all right to be different. Educating children on appreciation of others and of themselves create a sense of equilibrium in their lives. It should also be noted that parents need to appreciate their kids well. Every kid is different and unique in their own ways. Appreciating them the way they are without being compared with a benchmark entrusts a confidence in them. Appreciation and empathy are two sides of the same coin. To achieve this, we need to be able to acknowledge a child's true feelings. We must learn how to listen and understand their feelings without judging. It fosters positivity in them and builds a two-way confidence, emotional literacy. Not to mention, they feel loved and understood, their feelings being respected. But acknowledging is not the same as agreeing. It is validating the feelings behind them. It demonstrates our understanding and appreciation. Acknowledging encourages emotional intelligence and empathy. After appreciation and acknowledgement comes affection. They say children learn to smile from their parents. Loving our kids and expressing it affectionately is a key factor in their overall well-being. It includes happiness and life balance, physical and mental health, good character and good relationships. And for our kids to truly flourish, we need to perfect ourselves as parents instead of perfecting our kids. We need to perfect our parental dimensions with them. So very good evening to our eminent guest of the day and to attendees. My name is Diptiman Tripathi. I am the Managing Director of WEFA India. I welcome you today for the webinar on Attention to Emotion, an initiative by I Am the Best Mom. We know our topic is so close to everybody who don't like to get appreciated. So let's understand the emotion of the child and how best we can inculcate the emotion. And when the child needs us maximum, we should be able to have the right kind of emotion, right kind of appreciation to this child. Now, today we have we are lucky to have you, Dr. Muktesh Don. He is a MBBS DNB in psychiatry, director and consultant psychiatrist at NIMS Hospital, Nasik, MBBS from Dr. VM Government Medical College, Solapur, and a DNB psychiatry from LGB Regional Institute of Mental Health, Tezpur, Assam, which is the center of excellence in psychiatry in India. Along with clinical practice, Dr. Don is working for the social causes, for the awareness about the mental health. Welcome you, sir, for today's webinar. With this, I would also like to introduce you all with Dr. Kasika Jain. Welcome you, ma'am. Thank you so much. Kasika Jain is a national renowned psychologist, a counselor, a NLP coach, hypnotherapist, a author, inspirational speaker, and a life coach. She is from Meerut. She provides psychological and spiritual counseling for depression, anxiety, relationship solution, child counseling, and many more in the field of mental health of the children and adolescents. Ma'am, you have been into the management of
mental health, your coaching. You have been a youth icon, and you have been the founder of Wonderful You as the organization which you are leading with the vision to spread hope, harmony, happiness in society and make people's life wonderful. So it requires a lot of courage. So big compliment to you. Thank you so much. Thank you. You have also started a national campaign with Wonderful Mind. And audience attendees, Dr. Kasik Ajain is also an author. Her book is already there in Amazon also, Dear Depression, Let's Break Up, which was published in June 2020. I'm sure we are going to learn a lot of things today from you, Dr. Muktesh, and Dr. Kasik Ajain. So ma'am, over to you. We all are waiting to hear from you. Thank you so much. I'll interrupt ma'am for a second. All the attendees, we will take up all your questions towards the end of the session, and you are most welcome to put it up in the Q&A section, and we will ensure to address all the questions. Thank you so much, Mr. Diptiman, for a wonderful introduction. Thank you so much. I'm so grateful to entire team of Cogni, and I'm the best mom. Thank you. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्रिसिएशन. हमारे जो सीरीज चल रही है अटेंशन टू इमोशन, उसमें आज हम एप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. सो बच्चों के बारे में एक बात हमें समझ लेना जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो लॉजिकल नहीं होते, बच्चे इमोशनल होते हैं. बच्चों के पास भले ही इतने सॉलिड लॉजिक ना हो, बट उनके पास बहुत सॉलिड इमोशंस होते हैं. अब एप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं, इसको मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी. एक छोटी सी बच्ची अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है कि मम्मा, आपके जो ये 2-4 सफेद बाल हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? तो उसकी मॉम बहुत सोच समझ के उसको आंसर करती है कि तुम ये जो शैतानियां करती हो, तुम ये जो गलतियां करती हो ना, इसकी वजह से मेरे बाल सफेद हो रहे हैं. अब बच्चा बहुत सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद अपने मम्मी से बात करता है कि अच्छा, तभी मैं सोचूं कि नानी के सारे बाल सफेद कैसे हो गए हैं. अब उसकी मम्मी बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है, बिकॉज उसकी मॉम ने उसको जो बताया कि उसकी गलतियों की वजह से उनके बाल सफेद हो गए हैं. तो बच्चे ने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि नानी के जो इतने सारे बाल सफेद हैं वो मम्मी की गलतियों की वजह से हुए हैं. अब जरा हम इसको एक डिफरेंट नजरिए से सोचते हैं कि अगर उसकी मॉम ने ऐसा कहा होता कि जब भी तुम कोई अच्छा काम करती हो तभी मेरा 1-2 बाल सफेद हो जाता है ये, तो वो बच्ची ये सोचकर कि मेरी मम्मी ने कितने सारे अच्छे काम किए होंगे इसलिए मेरी नानी के सारे ही बाल सफेद हो गए, वो अपनी मॉम के लिए ग्रेटफुल होती, हक करती उन्हें. क्योंकि बच्चों के पास लॉजिक नहीं होते, बच्चों के पास केवल इमोशंस होते हैं. आप उनको किस सिचुएशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो वो बहुत मैटर करता है. बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो एक आर्ट है जो हमें सीखनी चाहिए, और वो है आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन. क्योंकि एप्रिसिएशन की साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं तो आपने उसको एक मेंटल ग्लूकोज दे दिया. जिस तरीके से हमारी बॉडी में हम एनर्जी फील करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास मेंटल एनर्जी आती है जब भी कोई हमें एप्रिशिएट कर देता है. सो एप्रिसिएशन में अपनी ही एक पावर है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बने तो आपको उन्हें एप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप अपने बच्चों को बचपन में कोई तोहफे दें या ना दें, लेकिन आप बच्चों को एप्रिसिएशन का तोहफा हर वक्त दें. अब ये एप्रिसिएशन पे इतना हम फोकस कर रहे हैं और एप्रिसिएशन को हम ऐसा मान रहे हैं कि ग्लूकोज की तरह काम करता है, तो आखिर एप्रिशिएट करने से हमें रोकता कौन है? मतलब क्या ऐसी चीज है जो हम खुलकर अपने बच्चों को एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए ये बात बोलना चाहती हूँ कि हम सभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं इन सिंड्रोम से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं. हम सभी पेरेंट्स, एक सिंड्रोम है वो है टेकन फॉर ग्रांटेड सिंड्रोम, उससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, और डीके के सिंड्रोम की दूसरा क्या कहेगा. ये 2 सिंड्रोम है जिससे हम लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिसकी वजह से हम खुलकर एप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज को. तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पास कुछ भी चीजें होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, उसको हम बहुत ज्यादा ऐसे लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड. इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप अच्छे घर में रहते हैं
तब भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? और लोगों के पास तो इससे भी बड़ा घर है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो क्या बात है, इसमें बड़ी बात क्या है? आपके पास बच्चा है, बिल्कुल हेल्दी है, वो अच्छी तरीके से चल सकता है, बोल सकता है, खा पी सकता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सारे बच्चे होते हैं। मेरा बच्चा तो तभी बहुत अच्छा होगा जब वो 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, या वो हर एक्टिविटी में जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो टॉप पर ही आएगा, तभी उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ऐसी सबकी साइकोलॉजी नहीं होती, ऐसी सबकी मेंटेलिटी नहीं होती, पर कहीं ना कहीं हर बच्चा अपने चाइल्डहुड में ये सफर करता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं टेकन फॉर ग्रांटेड सिंड्रोम से पीड़ित हैं। एंड साथ ही साथ DKK सिंड्रोम की दूसरा क्या कहेगा। सो ये DKK सिंड्रोम जो है वो दो तरीके से हम समझ सकते हैं, दूसरा क्या कहेगा या दूसरा क्या कर रहा है। ये सिंड्रोम जब तक हमको परेशान करता रहेगा, जब तक हमारे पास जो भी है हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं और अप्रिशिएट कम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं, हम अपने बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट अप्रिशिएट करने वाली कोई चीज भी तो हो इसमें। अब ये 60% मार्क्स लेकर आया है तो इसको कैसे अप्रिशिएट करें? इसने फुटबॉल के मैच में पार्टिसिपेट किया था, इसको कैसे अप्रिशिएट करें? इसकी तो टीम ही नहीं जीती है। तो जब आप केवल एप्रिसिएशन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट डिसाइड कर लेंगे तो यानी कि आपने बच्चे की जो हैप्पीनेस है उसे बहुत लिमिटेड कर दिया है। एप्रिसिएशन का जो निक नेम है वो है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। जब भी आप बच्चे को किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होना सिखाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने अगर फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट किया है तो वो इस चीज के लिए भी थैंकफुल और ग्रेटफुल हो सकता है, अपने आप को अप्रिशिएट कर सकता है, या आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एटलीस्ट उसने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने शायद पार्टिसिपेट भी नहीं किया होगा, बट आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। तो एप्रिसिएशन का आप कोई भी पॉइंट ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई सर्टेन पॉइंट्स डिसाइड कर लेंगे और बहुत ज्यादा फिक्स्ड और रिजिड हो जाएंगे कि अगर बच्चा 100 में से 100 ही लाएगा तो ही उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज उसको या तो कंपेयर कर दिया जाएगा दूसरे बच्चों के परफॉर्मेंस से, या उसको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो वहां पर बच्चे की सेल्फ स्टीम पर इनडायरेक्ट अटैक हो जाएगा। बच्चा उस काम को करने के लिए दोबारा कभी एफर्ट्स नहीं डालना चाहेगा, वो मोटिवेशन फील नहीं करेगा, बल्कि वो और डाउन फील करेगा, वो डिप्रेस हो जाएगा। साथ ही साथ कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं। जरूरी नहीं है हार्श होने का मतलब है कि वो बच्चों को मारें या उनका कोई रिवॉर्ड ले लें, लेकिन वो हार्श ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उदासी बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली किसी और को सुनाकर वो सोचते हैं नेगेटिव मोटिवेशन देने से बच्चा जो है ना अच्छा परफॉर्म करेगा, बट नेगेटिव मोटिवेशन से तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ भी जाता है जहां पर आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो वहां पर और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप अपने बच्चे को एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि उसका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि कैसे पेरेंट्स टेकन फॉर ग्रांटेड और DKK सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अब क्या होता है इसमें, एक और यहाँ पर पेरेंट्स की एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। जब भी बच्चों को ट्रीट करते हैं तो क्योंकि वो सब चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, अब वो बच्चों को फैसिलिटीज देना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनाएं उसे, उसके लिए अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज का अरेंजमेंट कराएं, सब कुछ फैसिलिटीज देना चाहते हैं। पेरेंट्स इसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आजकल तो मदर्स भी वर्किंग होंगे, दोनों पेरेंट्स इस मोटिव से अर्न करते हैं कि हम अपने बच्चे को एक बहुत ही हैप्पी और सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनाएंगे, बट उसके फाउंडेशन ईयर्स में उसकी सेल्फ स्टीम बनाना कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। वो अपना बैंक अकाउंट रेगुलर चेक करते रहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे कौन से और अच्छे कॉलेज में भेजना है, उसे फॉरेन हायर स्टडीज के लिए भेजना है, या उसके अपब्रिंगिंग में कितना खर्चा हो जाएगा। बट बॉन्डिंग अकाउंट जो कि एप्रिसिएशन से अगर भरा रहे तो आपका बॉन्डिंग अकाउंट जो है ना हमेशा फिल रहेगा। एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके और बच्चे के बीच में एक अच्छी रेपो है, आप उसे छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि जिस भी चीज के लिए किसी को भी अप्रिशिएट कर दिया जाता है, सो वो उस काम को रिपीट करने लगता है। याद कीजिए, जब आपके बच्चे छोटे थे तो तब वो चलना सीख रहे थे, आपने
वो गलत चला, वो गिर गया, लेकिन आपने क्या किया, उसको ताली बजाकर एकदम से मोटिवेट किया। आपने उसे मोटिवेट किया कि आप चल सकते हो, उठो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक स्टेप ले सकते हो तो दूसरा भी ले सकते हो। और आपने उसे इतना अप्रिशिएट किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपने ग्रेटिट्यूड शो किया, वाओ मेरा बच्चा चलना सीख गया। सो उस एनर्जी से उसको मोटिवेशन मिला और उसने अपने उस अच्छे बिहेवियर को और रिपीट किया, और इस तरीके से वो चलने में परफेक्ट हो गया। सेम खाना पीना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब पर ये काम करता है। सो मैं पेरेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ कि जितनी बड़ी होगी आपकी ताली, उतनी ज्यादा आएगी आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली, क्योंकि एप्रिसिएशन का सीधा कनेक्शन आपकी स्माइल से है, आपकी हैप्पीनेस से है। जिस भी इंसान को अप्रिशिएट कर दिया जाता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो आप देखते हैं कि उसका हैप्पीनेस क्वोशिएंट बढ़ जाता है, और हैप्पीनेस क्वोशिएंट बढ़ता है तो उसका ईक्यू भी अपने आप ही स्ट्रांग होता रहता है, बिकॉज उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस डिपॉजिट होते रहते हैं। हर पेरेंट्स की एक चाहत होती है कि उनका बच्चा जब भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करे तो बोले आप बेस्ट मॉम हो, आप बेस्ट डैड हो इस दुनिया के। बट जब बच्चे को कॉम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम 10 बार सोचते हैं कि ये बेस्ट बच्चा है भी या नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि उसकी क्लास के और बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, या उसके कजन्स की या नेबर्स के बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। सो वहां से हम कंपैरिजन कर कर बड़ा ही यहाँ पर हम इस तरीके का बिहेवियर करते हैं कि बहुत सोच समझ के, अच्छा बेटा तुम्हें और तैयारी करनी चाहिए, या तुमने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुमको ना अपने और एफर्ट्स डालने चाहिए थे, और पढ़ाई करनी चाहिए थी, ये 2 नंबर भी कहाँ पे रह गए। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म एप्रिसिएशन का जितना अकाउंट होता है उसे भी खाली कर देता है। अगर पेरेंट्स कभी ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपको बच्चे की गलती बतानी है, तो आपको बहुत ही सिंपल सी एक फीडबैक सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है, जिससे बच्चे का क्रिटिसिज्म नहीं होता बल्कि एक उसका न्यूट्रल एप्रिसिएशन हो जाता है। इसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे हर मदर को पता होगा, या आजकल तो फादर्स को भी पता है कि सैंडविच कैसे तैयार करते हैं। उसमें आप एक ब्रेड की लेयर लगाते हैं, फिर उसमें आप स्टफिंग फिल करते हैं, एंड देन फिर आप ब्रेड की लेयर लगाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे के लिए एप्रिसिएशन का फीडबैक सैंडविच, जिसमें थोड़ा सा बीच में क्रिटिसिज्म भी डालेंगे आप, तो कैसे तैयार करते हैं। पहली लेयर प्रेज की, आप अपने बच्चे में ढूंढिए कि उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, उसने क्या अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि अगर आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है, वो 75% मार्क्स लेकर आया है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो अबव 90 लेकर आए, बट वो 75 तो लाया, तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, बेटा आपने अपना बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने नोटिस किया था आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, और आप बहुत अच्छे हो। और इसके साथ साथ उसकी 2-4 क्वालिटी और भी, कि आप तो जिस चीज को सोच लेते हो उसको पूरा कर लेते हो, आप तो मम्मा का कहना भी मानते हो। मतलब आपने उसकी अप्रिशिएट करके उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ाई। देन उसके बाद आपने उसका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फिल कर दिया बीच में, यानी कि अगर आपने थोड़ी और भी मेहनत की होती तो आपका ये स्कोर और हाई हो जाता। फिर आपका जो स्कोर हाई होता है उससे बेटा जब आप आगे आगे बढ़ते रहते हो तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। मार्क्स मम्मा आपको जज नहीं कर रही है, मार्क्स आपकी इंटेलिजेंस डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बट आपकी मार्कशीट जो है वो और ब्यूटीफाई हो जाती है। तो इस तरीके से तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसको मोटिवेट करने के लिए बहुत तरीके से उसमें जो है ना उसको बता सकते हो। उसकी हेल्प करने के लिए आप ये भी कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है तो आप मम्मा से हेल्प ले सकते हो, आप गूगल से हेल्प ले सकते हो, आपका ट्यूशन अगर कोई लगवाना है तो आप हमें बताओ। तो आप जो फिल कर रहे हैं बीच में उसका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फिल कर रहे हैं, एंड देन फिर उसको वापस से प्रेज की लेयर से कवर कर दीजिए कि मुझे पता है कि इस बार आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आप जो सोच लेते हो वो एक बार सोच लेते हो, मतलब आपके माइंड सेट होने का मतलब है वो काम हो गया, और मेरा बेटा या मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है, वो तो मम्मा की बात को बहुत ध्यान से सुनती है, मतलब आप उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्रिटिसाइज करने का या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट करने सीख करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आपका बॉन्डिंग अकाउंट हमेशा फिल रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपने एक क्रिटिसिज्म का पैटर्न छोड़ा, वहीं पर आपका बॉन्डिंग अकाउंट में से बैलेंस इतना तेजी से डिडक्ट होगा कि आप उसको 10 बार 50 बार अप्रिशिएट करेंगे, तब जाकर वो बैलेंस बराबर होगा। तो आपको एप्रिसिएशन की सप्लाई बढ़ानी है और क्रिटिसिज्म की सप्लाई हमेशा कम करनी है। अब मैं एप्रिसिएशन के बारे में बोल रही हूँ, इतना जोर दे रही हूँ, तो पेरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर एप्रिसिएशन इतना जरूरी क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब भी आप बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए वो किसी चीज के लिए लेजी फील कर रहा है, नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपने उसे एक्नॉलेज कर दिया, आपने उसे अप्रिशिएट किया, या आपने उसे सिंपली ये भी कह दिया कि आपको
जो है ना अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, आपके मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन आप जो ट्राई करने वाला एटीट्यूड है वो आपका कमाल का है। और जो बच्चा ट्राई करना जानता है वो जिंदगी में आगे बढ़ना जानता है। आपने जैसे उसे ऐसे अप्रिशिएट किया तो यहाँ पर उसका माइंड सेट में जब वो उसको अप्रिसिएशन मिलेगा तो उसका माइंड सेट चेंज होगा। अगर वो वाकई थोड़ी लापरवाही भी कर रहा होगा, लेकिन आपके अप्रिसिएशन से, आपके मोटिवेशन से उसको माइंडसेट चेंज करने में बहुत ही आसानी होगी। आप देखिए कि जब हम बच्चे गेम खेलते हैं तो वहां पर जब भी वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फौरन से उनको थम्स अप आता है, उनको आता है ब्रावो, वेल डन। सो इससे क्या होता है, एप्रिसिएशन से डोपामीन ट्रिगर होता है। डोपामीन एक फील गुड केमिकल है जो हमारे अंदर जब वो डोपामीन रिलीज होता है तो हमें मोटिवेट करता है उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चे गेम का एडिक्शन लग जाता है उनको, वो बार बार उस डोपामीन वाला जो रिलीज उनके अंदर हो रहा है उसको री एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये अचीवमेंट मॉलिक्यूल है। अगर आप अपने बच्चे को एक अचीवर, एक हैप्पी इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर डोपामीन की सप्लाई पॉजिटिव वे में करनी है। ये नहीं कि बच्चा और चीजों का एडिक्शन हो जाए उसको, और उसको जो एप्रिसिएशन है वो गलत जगह से मिलना शुरू हो जाए। आप अगर उसकी एप्रिसिएशन की सप्लाई अपने लेवल पर अच्छी रखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा। एप्रिसिएट करने से मूड इंप्रूव होता है। कोई आप तैयार होकर आए हैं कहीं और आपको देखते कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर दे, अप्रिशिएट कर दे, वाह आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारे लग रहे हो, एकदम से आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। आपका लो मूड भी होगा तो एकदम से इंप्रूव कर जाओगे। तो ऐसे ही बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ कर उनकी तारीफ करते रहिए ताकि वो एक हैप्पी मूड में रहें। उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, जैसे अभी मैंने फीडबैक सैंडविच टेक्निक से बताया कि उनकी सेल्फ स्टीम कैसे आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से वो उनके अंदर जो इनोवेशन होता है वो इंप्रूव हो जाता है। बिकॉज अगर आपके बच्चे ने, सपोज कीजिए आपको कोई ड्राइंग बना कर दिया और आपने उसमें कुछ भी अच्छा जो बच्चे ने थोड़ा सा भी इनोवेटिव किया है उसे ढूंढकर अप्रिशिएट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो उससे भी इनोवेटिव आइडिया सोचेगा और उसके अंदर वो क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरह से आपका और बच्चे के बीच में एक ट्रस्ट वाला बॉन्ड जो है ना मजबूत होता है। आपका जो बॉन्डिंग अकाउंट बहुत स्ट्रांग होता है तो आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चा बाहर रोल मॉडल्स नहीं ढूंढता, बच्चा रोल मॉडल्स अपने पेरेंट्स में ढूंढता है। हर मॉम डैड की ये चाहत होती है कि मेरे बच्चे का रोल मॉडल मैं बनूं। बट अगर बच्चा ये देखेगा कि मेरे मदर फादर क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो जो चीज उनके पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, चीखते रहते हैं, तो बच्चा कभी ये चीज सीखेगा ही नहीं। और वो सीखेगा नहीं तो आपसे कनेक्टिविटी भी फील नहीं करेगा, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म जो आप दूसरों को देते हैं वो आप उसको भी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। अप्रिशिएट करने से आपका बॉन्ड मजबूत रहेगा। इसी तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, वो अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की सोचेगा, उसके अंदर कंडीशनिंग हो जाएगी गुड बिहेवियर की, क्योंकि जिस भी बिहेवियर को आप अप्रिशिएट करते हैं वहां पर रिपीटेशन आता ही आता है, क्योंकि हमको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है और सेंस ऑफ अचीवमेंट से बच्चे के अंदर डोपामीन, सेरोटोनिन जब रिलीज होते हैं तो वो उसको री एक्सपीरियंस करना चाहता है, बिकॉज हमारा माइंड पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एप्रिसिएशन जो है आपके लिए प्लेजर है और जो क्रिटिसिज्म है वो है पेन को अवॉइड करना चाहता है। आप सोचें कि क्रिटिसाइज करके मैं बच्चे को सुधार लूं, वो और गलती करेगा और वो उस गलती से बचना चाहेगा, एस्केप लर्निंग ले लेगा। लेकिन जैसे ही आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो प्लेजर की तरह लेगा उसे और री एक्सपीरियंस करना चाहेगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जिस चीज के लिए आपने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, थैंकफुल हुए, तो उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसी तरीके से मटेरियल रिवॉर्ड्स को आप एप्रिसिएशन से रिप्लेस कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि बच्चे को हर वक्त एप्रिशिएट करने के लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लाना है या उसकी विशेस पूरी करनी है। सिंपली आपने बच्चे के अंदर जो भी उसका पॉजिटिव बिहेवियर है उसे देखकर एप्रिशिएट कर दिया एंड पब्लिकली अप्रिशिएट करना है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि अगर किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो प्राइवेटली करो, अगर किसी को अप्रिशिएट करना हो तो पब्लिकली करो। बच्चे की कमियां नहीं, बच्चे की खूबियां रिश्तेदारों को बताओ, अड़ोसी पड़ोसी को, किटीज में जाओ वहां पर बताओ, जहां पर भी मौका मिले बच्चे की जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनको एक दूसरे के साथ स्प्रेड करो, ताकि आपके इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से बाकी पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, आपका बच्चा एक हैप्पी स्टेट में रहे। अप्रिशिएट करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि वहां पर एक इंसान का जब कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसके बीच में ट्रस्ट हो रहा है कि भाई
मैंने ये जो काम किया है ये इनको समझ में आया, इन्होंने एक्नॉलेज किया, मुझे अप्रिशिएट किया, सो ये मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे नोटिस करते हैं। अदरवाइज आजकल के बच्चों की कंप्लेंट होती है कि मुझे सुना नहीं जाता, मुझे नोटिस नहीं किया जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने किसी को अप्रिशिएट किया, इट मीन्स आपने उसे नोटिस किया, सो फिर यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसी तरह से इनहांस हो जाती है एम्पैथी। बिकॉज देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि बिकॉज एम्पैथी एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है दूसरों को समझने की और एक्सेप्ट करने की एंड अप्रिशिएट करने की। अगर एक चिड़िया और एक मछली का कंपैरिजन हो, जैसे मछली का अपना एक हुनर है पानी में तैरना और चिड़िया का अपना एक हुनर है खुले आसमान में उड़ना। अब अगर मछली को आप पानी से बाहर निकाल के बोलते हैं कि तुम ये क्या पानी में तैर कर टाइम वेस्ट करी हो, देखो खुला आकाश कितना बड़ा है और उसमें उड़कर दिखाओ, तभी हम मानेंगे तुम में कोई टैलेंट है। तो मछली क्योंकि वो उड़ने के लिए बनी नहीं है, सो वो उड़ नहीं पाएगी। अपना इतना अच्छा टैलेंट होते हुए भी वो सारी जिंदगी उस क्रिटिसिज्म, उस कंपैरिजन की वजह से इस बात पर बिलीव करेगी कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं था, और वो अपने उस जोन में भी अब अनकंफर्टेबल हो जाएगी और वो जो कर रही थी अच्छे से हैप्पीली उसको भी नहीं करेगी, उसकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट आ जाएगा। डिस्कम्फर्ट आने की वजह से वो अनहैप्पी स्टेट में चली जाएगी, अनरिसोर्सफुल स्टेट उसको डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ फेंक देगी। सो आपको समझना है कि एक जो मछली है उसका टैलेंट है तैरना और जो एक चिड़िया है उसका टैलेंट है आकाश में उड़ना, दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। यही एम्पैथी हमें अपने बच्चों में रखनी है। कोई बच्चा हो सकता है ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता है वो लिंग्विस्टिक बहुत अच्छा हो, किसी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा हो सकता है, तो हो सकता है किसी कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो तो कोई इंट्रोवर्ट हो, किसी बच्चे का हो सकता है स्पिरिचुअल बैंड ऑफ माइंड हो सकता है कोई बच्चा बहुत लॉजिकल हो, कोई बच्चा बहुत इमोशनल हो। हर इंसान का अपना एक टैलेंट होता है। अगर आप एम्पैथी रखेंगे कि मेरे बच्चे का ये टैलेंट है, मेरा बच्चा ये अच्छा कर सकता है, तो आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट करेंगे तो आप उसे एक हैप्पी एंड सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बिकॉज एप्रिसिएशन आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ाता है, आपका EQ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पेरेंट्स जनरली IQ पे बहुत फोकस करते हैं, वो अपने बच्चों की लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान रखते हैं, बट EQ और AQ पर उतना फोकस ना होने की वजह से वो इतना छोटी छोटी बात जैसे एप्रिसिएशन ही है, ये एक्ट ऑफ काइंडनेस है, एक थैंकफुलनेस है, एक ग्रैटिट्यूड है, ये पे करना ही भूल जाते हैं। और जब तक आप इसको पे नहीं करोगे, जब तक आपको कोई चीज रिसीव नहीं होगी, क्योंकि हमें कोई भी चीज पाने के लिए पे करना होता है, तो पहले आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है बच्चों के लिए, तब वो जाकर आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। जब उनका टाइम आएगा आपके लिए कुछ करने का, तभी वो कर पाएंगे। तो आपको पहले अपनी तरफ से पहल करनी है, अपने बच्चों को समझना है, तभी वो समझेंगे। पेरेंट्स इमेजिन कीजिए जरा एक सिचुएशन, एक बच्चा आए और अपने फादर से बोले, क्या पापा आपने वैगनार ले रखी है, मेरे जो है ना फ्रेंड के पापा के पास तो BMW है, आपने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, क्या वैगनार में हम जाते हैं, मेरा तो बहुत ही स्टेटस डाउन हो जाता है, मेरे को तो बड़ी शर्म आती है कहते हुए भी कि आप मेरे पापा हो, आपके पास वैगनार है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बेस्ट कंफर्ट देने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो 1 मिनट में बच्चे ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, उसने आपकी वैल्यू नहीं की, तो आपको बहुत दुख होगा। यहीं पर अगर आपका बच्चा अप्रिशिएट करे कि पापा आई एम सो थैंकफुल कि हमारे पास एटलीस्ट गाड़ी तो है, मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसके पास ना केवल स्कूटर है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे ने अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। बट वो सीखेगा कहाँ से? वो सीखेगा तो आप ही से ना, क्योंकि अगर आपने उसे अप्रिशिएट किया होगा तभी तो उसे अप्रिशिएट करना आएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वही करते हैं जो वो हमसे सीखते हैं, जो वो हमें करता हुआ देखते हैं। वो हमारी बात सुनते नहीं है, वो हमारी बात जो हम कर रहे होते हैं उसे देखकर सीखते हैं। तो पहले हमें एप्रिसिएशन की आदत डालनी है, तब हमारा बच्चा छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करेगा। उसे सिखाइए कि एप्रिसिएशन से उसकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो सकती है। जैसे उसके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी उसके पास टॉयज हैं, उसके पास उसको जो भी फूड मिल रहा है, उसके घर में जो भी फैसिलिटीज हैं, जो कुछ भी उसके अंदर खास है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो, चाहे वो उसकी कोई एक्टिविटी को लेकर हो, उसको ग्रेटफुल होना सिखाइए। किस बात के लिए आप ग्रेटफुल रहो बेटा, क्योंकि अगर आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो गए तभी जाकर आप जो है ना जिंदगी में सब चीजों की वैल्यू करोगे, खुश रहना सीखोगे। अगर बच्चा ट्रिप करना स्टार्ट कर देगा छोटी छोटी बातों के लिए, सो वो जो कुछ भी अच्छा है उसके पास वो भी खो देगा। वो
एक बहुत ही जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट सी एक स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है वो, लेकिन ग्रैटिट्यूड के ऊपर ये कि आप कैसे थैंकफुल हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे दो भाई होते हैं, एक भाई क्या करता है, उसका बहुत ज्यादा हर समय मीन मेक निकालने की आदत होती है, बहुत झीकने की आदत होती है, और एक जो उसका ट्विन भाई होता है उसकी आदत होती है हर चीज को अप्रिशिएट करने की। तो एक बार उनके फादर जो है ना अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, सो वो कहीं से कोई ऐसे कि माइंड किस तरीके से काम करता है उससे कोई कोर्स कर आए थे, तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने बच्चों का रियलिटी चेक करना है कि आपका बच्चा कौन ग्रेटफुल है किस चीज के लिए, कौन बहुत पॉजिटिव है, कौन हर हाल में खुश रह सकता है, तो एक काम करो, इस बार उनका बर्थडे आए तो जो बच्चा बहुत ज्यादा क्रिप करता रहता है, कंप्लेनिंग मोड में रहता है, तो उसको ना तुम बहुत महंगे महंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट उसके रूम में भर देना। और जो बच्चा तुम्हारा बहुत पॉजिटिव रहता है, जो बच्चा हर समय ग्रेटफुल रहता है, उसके उसमें क्या करना, तुम शिट डाल देना, ठीक है, काव का डंक लाना और उसके पूरे उसमें जो है ना फैला देना, और फिर देखना सुबह उठकर उनका क्या एटीट्यूड है। ऐसा ही वो फादर करते हैं, उन्हें रियलिटी चेक करना होता है। सो जब सुबह उठते हैं तो जो बच्चा बहुत ज्यादा क्रिप कर रहा होता है, कंप्लेन वाला कर रहा होता है, वो फिर भी कमी निकालता है, अरे मुझे ये टॉय नहीं चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था, इतने सारे फालतू के टॉय ला दिए हैं, मुझे तो ये वाला चाहिए था, इस तरीके से वो कंप्लेन करता है। जो दूसरा वाला होता है, उसके फादर सोचते हैं जब इतने महंगे महंगे इतने अच्छे खिलौने से ये ऐसी हरकतें कर रहा है तो पता नहीं वो तो बिल्कुल ही पागल हो गया होगा, क्योंकि उसके उसमें तो हमने इतना ज्यादा गंद फैलाया हुआ है। वहां पर जब जाते हैं उसके रूम में तो देखा होता है कि वो उसी से ही सारा रूम की जो दीवारें हैं उसको ऐसे पेंट कर रहा होता है। बोलता है कि पापा आज मुझे ये चीज मिली है, इस तरीके का वेस्ट मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा ब्यूटीफुल आर्ट अपनी फिंगर से ऐसा कर दूं। मतलब वो वहां पर भी उससे भी खेल रहा होता है, और वो बोलता है थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मुझे पता चला कि ये भी इतनी यूजफुल चीज होती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा और ये सीखा वो सीखा। वो तारीफों के पुलिंदा बांध देता है। इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो माइंड सेट होता है, अगर हम हर चीज में ही कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी ग्रेटफुल होना सीख जाते हैं तो कोई भी सिचुएशन हम पर कभी हावी ही नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्टेड सिचुएशंस में ही केवल ग्रेटफुल होते हैं, उसी में ही अप्रिशिएट करते हैं। अगर मैंने अपने बच्चे से एक्सपेक्ट किया कि मेरा बच्चा डांस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा और वो फर्स्ट आया, तो तभी मैंने अप्रिशिएट करना है। अगर वो सेकंड आ गया तो मैंने उसे पहले क्रिटिसाइज जरूर करना है और फिर कहना है चल अच्छा ठीक है सेकंड आ गई, कोई बात नहीं, जस्ट कुछ तो आई, कुछ तो लाई, खाली हाथ तो नहीं आई। तो इस एप्रिसिएशन का फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये एप्रिसिएशन बहुत ही गलत तरीके से किया गया, इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। सो एप्रिसिएशन राइट वे में करना है जिसमें एक्सेप्टेंस हो। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और हम अब देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना सिखा सकते हैं। सबसे पहले उसे सिखाइए कि एक्ट ऑफ काइंडनेस रिकॉग्नाइज करना सिखाइए। आप उसको ये बताइए कि किस किस चीजों के लिए वो काइंड होकर ग्रेटफुल हो सकता है, कौन कौन सी चीजें अप्रिशिएट करने के लिए। सबसे पहले तो उसे उसकी बॉडी के लिए अप्रिशिएट करना सिखाइए कि वो हर दिन सुबह जब उठता है तो स्माइल से उठे और अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करे, बिकॉज ये बॉडी के बिना हमारा कोई भी सर्वाइवल नहीं है। हमारा माइंड कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, बट ये बॉडी हमें चाहिए एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। उसको सिखाइए कि जिन किताबों को वो पढ़ता है वो उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता है। कोई फ्रेंड हेल्प करता है उसके लिए ग्रेटफुल होना सिखाइए। जो फूड आप उसे देती हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना सिखाइए। छोटी 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 बातों के लिए उसे ग्रेटफुल होना, अप्रिशिएट करना सिखाइए। उसे काइंडनेस सिखाइए कि कैसे लोग की तारीफ करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसे पूरे दिल से खुश होकर बड़ी सी स्माइल के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करो, क्योंकि उससे उसका भी फायदा है। अगर मैंने आपकी तारीफ की तो वो तारीफ के वर्ड्स मेरे माइंड में भी चलेंगे और मेरे अंदर भी वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे। तो बच्चे को सिखाओ कि आपको तारीफ सिर्फ दूसरे के फायदे के लिए नहीं करनी है, इससे तो आपका भी फायदा होता है। आप किसी को विश्वास देते हो, आप किसी को होप देते हो, तो इससे बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं। उनमें ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, उनमें किसी तरीके का अनहेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं होता है, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो उनको नेगेटिव करती है। तो इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, तो उन्हें रिकॉग्नाइज करना सिखाइए। फोकस पॉजिटिव वे में, जैसे कि आपको फोकस ये होना चाहिए कि जब भी आप अपने आसपास के लोगों को या किसी को भी ट्रीट करें, जैसे आप अपनी मदर इन लॉ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बच्चा ये भी नोटिस करेगा। आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, या आप किसी भी पर्सन के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, उस सब पर जो है ना बच्चे ध्यान देता है, वो फोकस करता है। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है पॉजिटिव वेज पर। लोग आपस में एक दूसरे को कैसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, चाहे वो आप अपने फैमिली मेंबर्स हो, अदर्स के साथ हो,
बस आपको उसको जो डेमो देना है वो हमेशा अच्छा डेमो देना है, पॉजिटिव, कि आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ करते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं, हस्बैंड को अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करना है, आपको अपने मदर्स फादर को अप्रिशिएट करना है, इवन आपको अपने घर के सर्वेंट को भी अप्रिशिएट करना है, आपको जो भी गाड़ी, जो भी आपके पास सब कुछ भी है उसके लिए आपको बस ग्रेटफुल ही होना है, अप्रिशिएट करना है, तभी बच्चा अप्रिसिएशन सीखेगा। अपने वर्ड्स एंड एक्शंस को बहुत केयरफुली चूज करना है। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चे का एप्रिसिएशन भी इतने ब्लैंक फेस के साथ करते हैं कि बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मम्मी पापा मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या ये ऊपर ऊपर के मन से कर रहे हैं। सो आपके वर्ड्स जो है ना बहुत अच्छी तरीके से आपको पॉलिश कर बोलने चाहिए, बिकॉज वर्ड्स हमारा ह्यूमन चार्जर है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइजिंग वर्ड बोलते तू नालायक है, तेरे बस की इतना भी नहीं है, तो फौरन उसकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी। वहीं पर आप ये बोलते हैं कि बेटा आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करी, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो इससे क्या होता है, ये वर्ड्स उसको मोटिवेट करेंगे और उसको एप्रिसिएशन की एनर्जी उसके अंदर जब भर जाएगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स के लिए माइंडफुल रहिए। इसी तरीके से आपको स्ट्रेंजर्स तक के साथ भी अच्छा बिहेव करना है, बिकॉज अब आपके लिए जो स्ट्रेंजर्स है, आपका बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है तो पहले तो उसके फ्रेंड बनने से पहले वो उसके लिए स्ट्रेंजर ही होंगे ना। वो कहीं भी किसी बड़ा होकर किसी कंपनी में जॉब करने जाएगा तो उसके फ्रेंड, उसके कलीग्स बनने से पहले वो उसके लिए स्ट्रेंजर होंगे। तो वो जाते कहीं ऐसा ना हो कि इस गलतफहमी में पड़ जाए कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा, वो पहले से पहले अपने शेल में चला जाए और उसका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस सब बिगड़ जाए। तो जैसे ही वो आपसे डेमो सीखेगा कि जो स्ट्रेंजर जिनसे हम फर्स्ट टाइम में मिलते हैं उनको भी एम्पैथी से देखना होता है, उन्हें भी अप्रिशिएट करना होता है, तभी उस आर्ट को यूज करते हुए वो स्ट्रेंजर आपके फ्रेंड, आपके वेल विशर बनते हैं। तो वहां से वो अप्रिशिएट करना सीखेगा हर उस चीज को जिसमें उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल है। इसी तरीके से आप उसे वैल्यू ऑफ लव एंड काइंडनेस सिखा सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा वैल्यू करो इंसानों की, उनके इमोशंस की। आपके पास जो भी सुख सुविधाएं, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई मटेरियलिस्टिक चीज है और आपके पास किसी के इमोशंस हैं तो प्लीज इमोशंस की वैल्यू करो, क्योंकि चीज तो आनी जानी है। आज जो चीज नहीं है वो कल को पुरानी होनी है, लेकिन जो इंसान है उसके इमोशंस जन्म से लेकर उसके आखिरी सांस तक, आप देखिए कि हम सबको इमोशंस की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है इमोशनल लेवल पर। एक छोटा बच्चा है वो ज्यादा इमोशनल होता है, हम जब बड़े हो जाते हैं तब भी अगर हम इमोशनल लेवल पर कंफर्ट फील नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, बट हमें कोई पूछने वाला नहीं है, घर गए तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, किसी ने हमारा वेलकम नहीं करा, तो हम इमोशनली कभी भी हाई फील नहीं करते हैं। सो हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर रखकर अपनी सेल्फ स्टीम को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव स्टेट में रख सकते हैं, यानी कि हम कैसे अपनी और दूसरे की मेंटल हेल्थ की वैल्यू करें, ये बच्चे को जरूर लेसन देना चाहिए बचपन से ही। यहाँ पर मैं पेरेंट्स आपको, आई होप आपको ये जो मैं शेयर कर रही हूँ आप इसको समझ रहे होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे। और मैं आपको इसी उसमें अभी एक टेक्निक सिखाती हूँ अप्रिशिएट करने की। इसमें मैजिक ऑफ AAA आप लगा सकते हैं। आप पहला ये कहता है एक्सेप्टेंस, दूसरा कहता है एप्रिसिएशन और तीसरा कहता है अपोलोजाइज। क्या होता है कि कई बार हमारे बच्चों से बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हो जाते हैं जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, अनएक्सपेक्टेड हुआ, और हमें तभी भी उनको पहले एक्सेप्ट करना है, बिकॉज जो हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते। तो पहले उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वहां पर उनकी सेल्फ स्टीम लो हो जाएगी। पहले एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें अप्रिशिएट कीजिए कुछ अच्छा ढूंढकर, और फिर उनकी जो माफी है, जो उनसे गलती हुई है, स्वीकार कर माफ कर दीजिए। कैसे? जैसे आपके घर में एक बहुत महंगा आपने डेकोरेटिव आइटम सजा रखा है, आपका बच्चा खेल रहा है और उससे खेलते खेलते गलती से वो टूट गया, तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब ये टूट गया है, वापस जुड़ नहीं सकता। फिर उसे अप्रिशिएट कीजिए कि थैंक गॉड बेटा आपने अपने आप को तो सेव कर लिया, नहीं तो अगर आपकी भी लग जाती तो और प्रॉब्लम होती। इसके टूटने का इतना कोई वो नहीं है, लेकिन आपके लग जाता तो बहुत वो हो जाता। आपने समझदारी से अपने आप को बचा लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने उस वर्स्ट सिचुएशन जो आपको उस टाइम लग रही है कि महंगा वाला वॉच मेरा टूट गया है, लेकिन फिर भी आपने, या उसका आपका शोपीस टूट गया है, आपने फिर भी उसको अपने आप को संभाला और उसे सिर्फ इसलिए अप्रिशिएट कर दिया ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। अब वो जो डर रहा होता ना कि अरे अब तो मम्मी का चांटा पड़ने वाला है मेरे, या और भी
कुछ डांट पड़ेगी, अब वो नॉर्मल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और उसके जो इमोशंस हर्ट होने वाले थे, क्योंकि आपके एक चांटे से या आपके कोई क्रिटिसिज्म वाले वर्ड से जो इमोशंस हर्ट होने वाले थे वो नहीं होंगे, और वो बिल्कुल नॉर्मल, कंफर्टेबल, फियरलेस फील करेगा और आपसे खुद ही माफी मांगेगा, सॉरी मम्मा मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा ये। और फिर आप उसे अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है बेटा आप बहुत समझदार हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप आगे से ध्यान रखोगे, देखो डैडी कितनी मेहनत करते हैं ना, कितनी मेहनत से अर्न करते हैं और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर उसके दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि आपने उसके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, आपने उसे डांटा नहीं, मारा नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करा, तो उससे क्या है, उसको लर्निंग मिल गई पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट टाइम जब भी वो कभी ऐसे खेल रहा होगा, शैतानी कर रहा होगा, आप देखेंगे उसका माइंड उसे ऑटो सजेशन देगा और वहां पर वो उस गलती को करने से बच जाएगा और वो बहुत बेटर फील करेगा। सो मेरे पार्ट का yes another maybe 2 minutes. Sure. Hello. Yes, Dr. Kasika. So we can run through in next 2 minutes, ma'am. Yeah. Sure. Just 2 minutes में। तो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज जो आपके बच्चे के अंदर एप्रिसिएशन, थैंकफुलनेस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, ये आपको डेली करानी है। और इसके साथ में यहाँ पर बस लास्ट ईयर मेरी स्लाइड है। सो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज में आपको एक प्रैक्टिस करानी है, अपने बच्चे को रोजाना ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है ना लिखने की आदत डलवानी है, कि आप अपने बच्चे से बोलें कि वो डेली जिन जिन भी चीजों को अप्रिशिएट करता है अपनी लाइफ में, जिन जिन भी लोगों को अप्रिशिएट करता है, जो भी उसको अपने अंदर क्वालिटीज अपने पेरेंट्स के अंदर या फ्रेंड के अंदर लगती हैं, तो वो अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में उसे लिखे। तो उससे उसका डेली का जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है वो उसे मोटिवेट करेगा, उसकी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस को हाई रखेगा। डेली 5 मिनट मेडिटेट करने से आपका बच्चा बहुत ज्यादा काम रहता है, वो इतना शांत हो जाता है कि आसपास की चीजों के लिए उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, और जब अवेयरनेस हाई होती है तो ऑफ कोर्स आप नोटिस करते हैं, तो आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। थैंक यू कहने की आदत डलवाइए कि हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू उसकी वोकैबुलरी में होना चाहिए। उसकी टंग पर ऐसा होना चाहिए कि एकदम स्लिप हो जाए, कुछ भी होते ही अच्छा या नॉर्मल भी या कुछ बुरा भी, तो उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढ के वो बोले थैंक यू। अगर गिर भी गया, चोट भी लग गई है, तब भी बोले थैंक यू भगवान, कम लगी है। इस तरीके की उसकी हैबिट डल जानी चाहिए। उसको आप सिखाइए कि वो दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करे, यानी कि उसको एक्ट ऑफ काइंडनेस की ट्रेनिंग दीजिए कि उसको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है, उसको घर में फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी है, उसको सेल्फ हेल्प करनी है। सो इस तरीके से उसको ये सिखाइए। एंड यस, नो सिंपैथी, ओनली एम्पैथी। हमें किसी के लिए बेचारा वाला वो एटीट्यूड बिल्कुल डेवलप नहीं करना है अपने बच्चों में। एम्पैथी डेवलप करनी है कि वो सामने वाले को बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट करना सीख जाए जैसे कि वो है, और उन्हें एज इट इज अप्रिशिएट करे। और ये तभी डेवलप होगा जब इसकी प्रैक्टिस आप भी करेंगे। आई होप आपको ये जो मैंने डिलीवर किया है सेशन आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस भी जरूर करेंगे। Thank you so much. Absolutely, Dr. Kasika. I think very beautifully narrated particularly when it comes to parents, and we being a part of this generation Alpha, or maybe the generation Z, who are raised by we the parents. Now we are more responsible for the generation because by 2025 the 2 billion population would be these children, and I'm sure we need to step up not only the children but as a community also. So having 2.5 million newborn every week worldwide, and I believe what you are saying, this need to be inculcated not on a specific timeline. I believe it has to be done on a as you said very rightly, dusra kya kahega, that probably was quite a lot at the early maybe 10 years back, but today I think the parents are absolutely understanding the bonding with their children and with their peers, and which is going to affect a lot. And the right kind of appreciation, as you said, is so very important. So need to catch the children right at the time when they are doing something great. And I'm sure Dr. Muktesh will be adding a lot of insight when we are stepping up the children's future. And Dr. Muktesh. Thanks, ma'am. Nicely presented. I'm inculcating that gratitude habit right now only. It's really beautiful, simple, lucid.
So the platform you created for me, I will just start with the one nice video. Today, boys and girls, we're going to take a few minutes and draw on the pieces of paper in front of you something or someone you are grateful for. Taking the time for gratitude is so important for our peace of mind and our happiness. And it's a great way to remind ourselves how lucky we are for what we have and who we have in our lives. Afterwards, we're going to share what we've drawn with the rest of the class. Let's begin. Wonderful, class. Now, who would like to come up first and share what you're grateful for? Me. Yes, Sarah, come on up. I'm thankful for trees because they give me oxygen. That's wonderful, Sarah. Thank you so much. Who would like to go next? I'll go. Jason, come on up. I drew my parents because without them I wouldn't even be here. And also they help me with my homework and I love them. Chocolate! I'm grateful for chocolate. Okay, Rebecca. Thank you. Simon, why don't you come up and share with the class what you're grateful for? Come on up, Simon. I'll be right up here with you. What are you grateful for, Simon? How would you like to play a game with your classmates to see who can guess whose hand you drew? Would you like that? All right, class. Can anyone guess whose hand Simon drew? I think it's the hand of a policeman because they protect us and keep us safe. I think it's Simon's hand because he's grateful to have a hand. Is it the hand of God? It's your hand, Miss Sanders. The journey ma'am carried through our, I will say, cognition, और दिमाग में जो सोच विचार उन्होंने नए शुरू किए थे. So what I tried to convey through this video, that appreciation is not only cognition, it's emotional. After watching this video, I think at least 60-70% we will feel that the moment that boy appreciate the teacher, the happiness she felt,